اتنی عظیم شخصیت کو آواز دینے میں کہ میرے پاس لفظ نہیں تھے، تو میں سراپا ان کی تعظیم کے لیے یہاں پہ اٹھ کھڑا ہوں۔ خواتین و حضرات، یونان ہو یا مصر، قاہرہ ہو یا ایران، بابل ہو یا نینوا، موہنجودڑو ہو یا ہڑپا، ہر تہذیب کو زندہ رکھنے کے لیے کسی رکھوالے اور مالی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ مالی ذمہ دار ہے تو تہذیبوں کی ندیاں سوکھنے نہیں پاتی، بلکہ وہ رواں اور دواں رہتی ہیں۔ اودھ بھی ایک تہذیب کا نام ہے۔ عربی اور فارسی والے اردو بولنے والے ہزاروں لوگ پیدا ہوئے، لیکن اودھی زبان کے لوک گیت کو غزل کے برابر رکھنے والا اگر کوئی شاعر ہے تو وہ آپ کا اپنا شاعر ہے۔ آپ کی ایک امانت آپ سے چھین کے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ البتہ یہ کہ ابھی تک میں صرف اصغر اور جگر اور آدم کا نام لے رہا تھا، اب اس روایت کو تھوڑا سا اور بڑھا دیجئے۔ یعنی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ ضلعوں کو تقسیم کرنے والے اور والیاں کون ہیں، مگر اتنا جانتا ہوں کہ بلرام پور بھی آپ ہی کے شہر کا ایک حصہ ہے۔ نانک چند عشرت کا نام اور بڑھا لیجئے، علی سردار جعفری کا ایک نام اور بڑھا لیجئے۔ 1947 سے پہلے کی تاریخ ہو یا 1947 کے بعد کی تاریخ ہو، دونوں تاریخوں کا شاہد عینی بھی ہے اور اپنی تہذیب کو بچانے والا بھی ہے۔ جناب بیکل اتساہی، ہمارے پہلے وزیر اعظم نے جب اس کو پہلی بار سنا تو کہا یہ لڑکا بڑا اتساہی ہے۔ اس کے بعد سے انہیں پوری دنیا بیکل اتساہی کے نام سے جانے لگی، یعنی وہ بیکل بھی ہیں، اتساہی بھی ہیں، اپنے لیے بیکل ہیں، دنیا کے لیے اتساہی ہیں۔ پدم شری بیکل اتساہی کا استقبال کرتا ہوں میں۔ ان کا آنا میں اس لیے شکریہ نہیں ادا کروں گا کہ یہ مشاعرہ آپ کا ہے، آپ مربی ہیں، آپ سرپرست ہیں۔ اگر آپ ہماری رہنمائی نہ کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ کی انگلیاں پکڑ کے، آپ کے مصروں کی انگلیاں پکڑ کے ہماری غزلیں سفر کرتی ہیں۔ آئیے میں استقبال کرتا ہوں آپ کا۔ اے اہل ادب آؤ یہ جاگیر سنبھالو، میں مملکت لوح و قلم بانٹ رہا ہوں۔ یہ بالکل قبل از وقت میں انہیں آواز دے رہا ہوں، ان کا مقام اور ان کی جگہ یہ نہیں ہے، لیکن انہی کا حکم ہے۔ اس پیرانہ سالی میں، اس بزرگی میں وہ تشریف رکھتے ہیں۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب پدم شری بیکل اتساہی صاحب، یہ مائک ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اس حال میں نہیں تھا کہ مشاعرے میں آ سکتا، مگر امید صدیقی کا ان کی محبت ہے چلائی مجھے۔ اب تک بیٹھ کے میں نے ان شعراء کو سنا، ان کے کلام میں سچائیاں بھی تھیں، ان سچائیوں میں اونچائیاں، تو بہت اچھا تھا۔ قابل سے احترام ہیں ہمارے شعراء، اور اس سے زیادہ سامعین سننے والے۔ میں کیا سناؤں گا، میری سمجھ میں سنتا ہوں کہ آج ہی سبھی پیچھے چلا جاؤں تو کچھ نہیں۔ ملاحظہ کیجیے، پتوار کاغذی ہے تو پنی کی ناؤ ہے، ہیں اس ندی میں جس کا ہوا میں بہاؤ۔ سنیے جناب میرا ہی ہندوستان ہے نام، کھیتی میرا وصول ہے فاقہ سبھاؤ ہے۔ سنیے جناب میرا ہی ہندوستان ہے نام، کھیتی میرا وصول ہے فاقہ سبھاؤ ہے۔ اسٹیشنوں پہ پانی پلاتے تو ہیں اچھوت، اسٹیشنوں پہ پانی پلاتے تو ہیں اچھوت، ہاں پنگھٹوں پہ تھوڑا بہت بھید بھاؤ ہے۔ اسٹیشنوں پہ پانی پلاتے تو ہیں اچھوت، ہاں پنگھٹوں پہ تھوڑا بہت بھید بھاؤ ہے۔ کل رات ان کو دیکھا تھا اردو لباس میں، کل رات ان کو دیکھا تھا اردو لباس میں، کوئی یہ کہہ رہا تھا کہ اگلا چناؤ ہے۔
दूसरा भी सुन लीजिए, फिर मैं निर्धन हूँ, मुझे दुनिया का दुर्बल दिख दिया जाए। मैं निर्धन हूँ, मुझे दुनिया का दुर्बल दिख दिया जाए। मेरी सदियों में कोई सुख भरा पल लिख दिया जाए। मेरी सदियों में सब कुछ बेच कर एक मांग भरवा दूं मगर पहले, मैं सब कुछ बेच कर एक मांग भरवा दूं मगर पहले मेरी बेटी का आचर। चलिए छोड़िए, दूसरा सुनिए। अब ये भी पुरानी है और ये ज़रूर मैं पढ़ता हूँ, लेकिन नहीं पहले पढ़ा। एक शिष्य से मुताबिक है कि मेरे एहसास को मौला मेरा काबू कर दे, मेरे एहसास को मौला मेरा काबू कर दे, फैसला जो भी हो मिन्नत किसे नाजी कर दे। ऐ खुदा, एक झलक ही के लिए बेकर हूँ, अपने महबूब को मेरे लिए राजी कर दे। मेरे महबूब को मेरे लिए राजी कर दे, मेरे लिए राजी कर दे। अब ये कुछ ऐसी है कर्म माशी हिजरत का लिखा था बहुत पहले, उसके जो एक शेर सुनाता हूँ। बूढ़ी माँ के इलाज की स्कीम गांव वाले बना रहे होंगे, बूढ़ी माँ के इलाज की स्कीम गांव वाले बना रहे होंगे। माँ के आंसू ये सोचते होंगे मेरे बेटे कमा रहे होंगे। डॉक्टर बन के चंद वर्षों से बेटा लंदन में काम करता है। बाप अपने वतन में टीबी से रोज जीता है, रोज मरता है। बाप अपने वतन में टीबी से रोज जीता है, रोज मरता है। अब जब मुजीब साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं, कहाँ है? नहीं तो आवाज़ ही नहीं। भाईचारा एकता की सरजमी करनेलगंज, आज ही लिखी है। भाईचारा एकता की सरजमी करनेलगंज और बकाई इल्म का मरकज हसी करनेलगंज। भाईचारा एकता की सरजमी करनेलगंज और बकाई इल्म का मरकज हसी करनेलगंज। करनेलगंज राह के पहलू में इसकी सब्जियों की आन बान, राह के पहलू में इसकी सब्जियों की आन बान है। तिजारत प्यार से मसनद नशी करनेलगंज, है तिजारत प्यार से मसनद नशी करनेलगंज। इसके पहलू में सुकून से खुश हैं तुलसीदास भी, इसके पहलू में सुकून से खुश है तुलसीदास। राम मानस आज तक भूला नहीं करनेलगंज, राम मानस आज तक भूला नहीं करनेलगंज। खिदमत दीनो अदब में उम्र अपनी काट दी, उर्दू हिंदी और अवधी का मकी करनेलगंज, उर्दू हिंदी और अवधी का मकी करनेलगंज। इसके मेहमान बन के बेकर बारहा आए हो तुम, दूर रहकर तुमको भी रखा पड़ी करनेलगंज। आज भी आए हो बेकर बन के मेहमान मुजीब, मेजबा मेहमान में अंतर कुछ नहीं करनेलगंज। तरन्नुम से नहीं हो पाता। और सारे तरन्नुम से सुनना चाहिए। सारे तरन्नुम 92 साल के वो हज़रत मोहम्मद है, तो वो तो अब आवा है आपके अंदर। इसमें बदल एक तो रहती लुत्फ जवानी, दूजे सुहानी रात, इसे मैं गजल कहूँ या गीत।
चेहरा छिपा उनको तस्वीर भी देना है तो एक नज्म पहले थी। मुजीब साहब में और बेहतर साहब में फैसला मुश्किल है कि कौन ज़्यादा जवान है। सुना है हम तरक्की कर रहे हैं, सुना है हम तरक्की कर रहे हैं, जहाँ से खेत नहरें बह रही हैं, कहानी कहत की सब कह रही हैं, जहाँ थी झोपड़ी बिल्डिंग खड़ी है, वहीं पर लाश मेहनत की पड़ी है। मिलोड़ी हमने दरिया की कलाई, दिले कोहसार पर बर्छी चलाई, समुंदर की तहों में बस गए हैं, उभर कर और भी हम धंस गए हैं, परिंदों से हवा में उड़ रहे हैं, सितारों से निपटना सितारों से यकीनन जुड़ रहे हैं, गगन के मेघ पर कब्जा जमाया, मगर धरती पे चलना ही ना आया, हमें एक पर कोई निर्धन न भाया, गरीबी का किया हमने सफाया, सुरक्षा करने वालों को लुभाया, सबक में अपने मतलब का पढ़ाया, हमारे सामने आईना लाओ, है कैसे हमें ये भी बताओ, हमारे अज़्म कंप्यूटर बताएं, मशीनें ज़िंदगी को भी जगमगाएं, हमारे धर्म बेसामा नहीं है, हमारे धर्म बेसामा नहीं है, मैं सब कुछ हम मगर इंसान नहीं हैं, हम अपने आप में टूटे हुए हैं, हम अपने आप में टूटे हुए हैं और हम अपने आप में टूटे हुए और खुद अपने लोगों से छूटे हुए हैं, नई राहों में मंदिर भर रहे हैं, नई तरकीब से हम मर रहे हैं, सुना है हम तरक्की कर रहे हैं। ये अब सलामत रहे, ये छुरियाँ नहीं चेहरे में। एक और चाहे हिंदी हो उर्दू हो कोई भी भाषा हो, इसमें एक सिर्फ है, एक विधा है जिसे दोहा कहते हैं। आज तक हमारे कलमकार या हमारे नापिद या हमारे आलोचक नहीं पता पाए कि पहला दोहा कब है, नहीं पता। एक दोहा सुनो। पैगंबर का कौल है जगत है एक परिवार, पैगंबर का कौल है जगत है एक परिवार, पैगंबर का कौल है जगत है एक परिवार, जगत है एक परिवार, प्यार पड़ोसी से करो सुखी रहे संसार, प्यार पड़ोसी से करो सुखी रहे संसार। अब फसलों में पड़ोसी कहाँ है, पड़ोसन नहीं। ऊपर डाले के फसलों घर आप लोग रैन भाई साँझ भाई चौदेश, रैन भाई उसकी परछाई में मैं एक दोहा सुनाता हूँ। गोरी पनघट से चली भरे गगरिया नीर, गोरी पनघट से चली भरे गगरिया नीर, गजल भजन सब त्याग दे गालिब और कबीर। तो कहाँ तक ठीक है, उसी टाइम में कहा था जिस टाइम में आप लोग सुन रहे हैं। क्या करें यार, मुझे कोई पास आ नहीं है, धीरे धीरे जवान हो रहे हैं। भाई से ना भाई सुनिएगा, आवाज़ पड़ी हुई है, 95 साल का चल रहा है, बहुत देर मैं दुआ करता हूँ यहाँ के लिए हमारे शोरा आपको सेहत और सलामती के साथ सेहत और सलामती से आपका साया हमारे सरों पे रहे। जिंदगी रही तो फिर आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।